AI cannot take over a human thing, a dentist or a doctor जो उनकी knowledge obviously 8-9 साल से वो पढ़ के आए हैं. It's difficult to take over it completely. But then हाँ, it can be like working together. What is the coolest part of your profession? हम जो काम करते हैं ना उसका जो outcome है वो instantly दिखता है. I think that is the coolest part. Gutka spitters, gutka eaters. So how bad their teeth or tooths are? Definitely bad, just not for your tooth, for your overall health. How PRP and stem cells are good for children? Yes, PRP stem cells मैं जैसे मैंने बताया मैं खुद अपने क्लिनिक में यूज़ करती हूँ for skin, for hair, and it's giving amazing and excellent results. Namaste. Welcome to Kalamveer by Mayur School Siliguri, a podcast where we shine spotlight on real life influencers and change makers of our society through education. So today we have someone who is a smile architect, who will make you look good, will enhance your personality, and who will enhance your smile too. So, without further ado, let's welcome Dr. Lavina Singhal on our show. Welcome, Dr. Lavina. Thank you so much. So, how have you been? I'm good. How about you? I'm also fine. So, you are a doctor. So, to introduce yourself, would you like to introduce? Yeah, sure. So basically, okay, let's start with my name. I'm Dr. Lavina Singhal, and I'm basically a dental surgeon. I have done my master's in dental surgery from Bangalore, and eager to expand my knowledge beyond dentistry. I also did many fellowships and hands-on courses for skin and hair as a skin and hair cosmetologist and esthetician, which I completed it in various places across India and abroad. So yeah, you know it's been a good experience coming from dental and then knowing about skin, hair, and काफ़ी सारी चीज़ें, plus traveling to so many places. And so yeah, that is all about me. I'm basically right now based in Siliguri, and I'm the owner and founder of Dentex by Dr. Lavina, which is situated opposite to Cosmos Mall in the Reliance Digital Lane. So yeah. So, at Mayur, we ask our kids, like, what is your ambition? So, they be telling teacher, doctor, nurse, astronaut. So, when you were a kid, so what was the, coolest, ambition you had, or you wanted to be a dental surgeon from then only? No, dentistry was never in the list, to be very honest. So basically, when I was young, I always wanted to be an air hostess. That was very Wow. fascinating for me. I used to feel, अच्छा हर जगह travel कर रहे हैं. It's gonna be fun. It's a Yeah. fun job. And they will be looking very nice. Yeah. So I think this cosmetologist and esthetician thing, it just came from there. I Okay. had it since childhood, looking well, dressing Yes, up yes. good, and so that this things, I think it was just there within me. But yeah, dentistry just happened. Even during my 11th and 12th, I prepared for my engineering. I had PCMB, all the four subjects in my 11th and 12th. And also, I gave entrance for all engineering as well as for medicals. And I cleared both by God's grace. But then I had to take a call कि मुझे engineering में जाना है या मुझे medical लेना है, क्या करना है, क्या नहीं. So it was a tough call, definitely. But then, yeah, I chose this. I mean, getting that prefix doctor before your name was very fascinating again for Yes, me. yes. It actually Yeah, takes a lot of hard work. I would say जब सब उस age में मस्ती कर रहे हम पढ़ाई कर रहे होते थे बैठ के, that was the peak age. Obviously वो 17-18 से लेकर, it takes 8-9 years for you to complete your masters and everything. So तब जब सब मस्ती कर रहे होते थे हम वहाँ पढ़ रहे होते थे बैठ के, Yes, yes. So definitely not easy. It's not easy to get a doctor before your name, as a prefix before your name, but then it's totally worth it. Yes, we can, see that it reflects on your personality too. Thank you so much. So you are also a smile architect. Can I call Yes. you smile Yes, architect? definitely.
So, what is the, coolest job, or what is the coolest, part of your, profession, to make people smile better, to fix their teeth, or to gain them more confidence? I suppose the coolest thing would be हम जो काम करते हैं ना उसका जो आउटकम है वो इंस्टेंटली दिखता है. इफ़ यू आर फिक्सिंग अ टीथ और वी आर रिलीविंग अ पेन ऑन योर टीथ और एनीथिंग, वो इमिडिएटली दिख जाती है वो चीज़. So, I think that is the coolest part because we don't have to wait for a certain number of days or weeks to see the results coming to dentistry or coming to your cosmetic procedures or anything. Because cosmetic procedures maybe आपको instantly patient is like, okay, I can see the difference. So same goes for dentistry. And imagine a kid walking in all scared in the clinic holding his mom's hand, and then while leaving he's just high-fiving me and grinning कि चलो I'm all good. So I think that is the coolest part कि आप at least वो चीज़ change कर रहे हो एक बच्चे पे, वो fear change कर रहे हो आप. And moreover, yes, for adults it's about the confidence you give. I mean, as a dentist, as a cosmetologist, I actually help them to gain that confidence back, because definitely in today's world जहाँ media की दुनिया है, it's all, everybody wants to look their best. So I am glad that I can help them achieve their goals. I'm being able to do that. So that's the coolest thing, I guess. Okay. So you have done fellowships from Germany, and you have studied across India also. But why Siliguri? Why you chose Siliguri? Because though no, nothing bad for Siliguri. I Definitely, love definitely, Siliguri. Like definitely. my hometown has become Siliguri. So Yes. nothing bad for Siliguri. But why a small place? Rather, you had a bigger opportunities or bigger picture. You have seen the bigger picture. So yes, so Siliguri is my place as well. Yes. I've been brought up in Siliguri. I'm a student of Nirmala Convent School till 12th. I'm an Nirmalite. And then yes, I went to Bangalore for my further studies. I did my bachelor's and master's both in Bangalore. And then yes, for my fellowships, I did travel to a lot of places. I've done my fellowships from Germany, Delhi, Indore, and various places in India and abroad. So I think Siliguri, because this is my place first of all, and moreover there are I mean I talking about opportunities. I think वो हर जगह है. You just have to grab it. And moreover I wanted कि जिस place से मैं belong करती हूँ उस place को at least they don't have to travel to metro cities. मैं उनको यहीं पे सब कुछ दूँ. कि उनको ये नीड ना रहे कि अच्छा ये चीज़ करना है तो मुझे आज दिल्ली जाना है, मुझे आज मुंबई जाना है, ये करवाने हैदराबाद जाना है. नो, आई वांटेड टू प्रोवाइड अ प्लेस जहाँ यहाँ पे सब होता है. देर आर गुड सेट ऑफ डॉक्टर्स हु आर वेरी वेल एडुकेटेड इन सिलीगुड़ी. एंड मतलब यही है मेरा एक कंसर्न कि वाई गो अब्रॉड, लाइक वाई गो abroad, outside your city when you can get everything here. So I wanted to provide that thing firstly. And secondly, yes, because I have I have that bond with Siliguri Yes, since I I know. am born and brought up here. My parents are here, my family, everybody is here. So yes, opportunities आते हैं हर जगह, but I think opportunities को आप यहाँ पे भी वो चीज़ कर सकते हो. Plus providing people with what they actually need. बड़े बड़े आपके जो cities है उसमें already लोग हैं. बट यहाँ पे आके ये चीज़ स्टार्ट करना, एक तो इमोशनल, डेफिनेटली it's that emotional bond. And secondly, yes, I wanted to provide a niche where people Can can yeah. have कि उनके पास ये चीज़ है यहाँ पे, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. Such a noble thought. Thank you know that's why doctor or this profession is respected worldwide. So okay, let me take you to a hypothetical situation. Imagine this. All right. Like uh, there are no textbooks or no pen paper, nothing. Everything has been taught by AI, robotics, and everything is digitalized. So what is the one thing you would enhance in you and let or help children with your surgery, or what you do with the children?
So what is the one thing All you right. would, do without textbooks or without, using any like homework? You haven't Right. had any, anything like Right. with, hard Hard copies. copies. Okay. Again, the one. Just before this podcast, we were speaking about this hard copies and soft Soft copies. copies. So yeah, this is an interesting question actually. I think yes, this is a world of AI and digital. Everything is digitalized, and so I think one thing what I could do for the kids to really understand about their oral health and mouth, maybe a VR, because that's a Yes. very trending and Yes. very fascinating for Yes, yes, kids. yes. So imagine a kid just diving into their mouth if using a Ah, VR, yes. and Because we use VR at our school as well. all right, So that's AI and amazing. robotics is the integral part of Mayur School, Right, and right. VR is also one of our, Amazing, amazing. facilities we are That's providing. amazing. That's amazing. So, just diving into their mouth and just seeing all the bacteria and, just Yes. trying to clean it off there. So, I Uh-huh. think that would be fun Yes. because obviously you remember what you Yes, see, yes, yes. right? So, that is again one thing with humans, हम जितना पढ़ते हैं लिखते हैं you know but आप क्या देखते हो वो आपको आपकी हाँ, याद में memory रह में मेमोरी में set रह set जाती है होती है, because so I think that is a good way to learn yes. things by when you see you actually take it. That's why we have incorporated LXL cinemas in our school Oh, as well. amazing. So That's we amazing. taught our kids through cinemas as well. Oh, So that's we very have, good. Very good. particular cinemas like moral values, or maybe, if any teenager is growing up, what are the, changes Correct, they have correct. to accept. Correct. So by cinematic, Illustrations yes, and yes, yes. demonstrations kind of thing. Yeah, So that's amazing. That's very we nice. do. I mean, Yesterday it's only. a very good thing, in Siliguri that you're starting with something very new. Yesterday only I was watching, because it's very fun It's to fun, it's fun, watch, it's fun. not just for kids, for parents, for Definitely, teachers, definitely. for professionals like Right, like right, me. right. I love watching movies. I mean, we all are Bollywood fans, right? So okay, so do you think that robots will replace dentist one day? Okay. All right. I guess, see, yes, because I'm not saying that it's going to replace dentist because that human touch is always important. आप कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो ठीक है बेसिक थिंग्स जो होती है आई थिंक बेसिक जो हम क्लीनिंग करते हैं फिलिंग करते हैं मे बी दैट कैन बी डन बिकॉज चलो ठीक है बेसिक चीज़ें हैं जो सबके माउथ में हमें करनी है बट ह्यूमन माउथ ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स आपके लिए जो ट्रीटमेंट होगा नेक्स्ट वाले के लिए वो ट्रीटमेंट सेम होगा इट्स नॉट लाइक नहीं होती है वैसी चीज़ें सो and ऊपर से that human touch is always empathy is always that Always there, someone yes, craves for when you're going to a doctor you're going to a hospital it's always about that empathy it's all which a robot cannot provide definitely so I guess yeah in future maybe it will be a hybrid kind of thing where the basic treatments maybe can be done by the robots we already have this robotic assistant and everything so that's already there बट देन वो ट्रीटमेंट मेकिंग जो ट्रीटमेंट प्लान मेकिंग होता है कि इसमें ये चीज़ें चाहिए होंगे प्लस जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती है लाइक आई एम अ पेरियोडोंटिस्ट एंड एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट दैट इज ऑल अबाउट बेसिकली कंसिडर अ बिल्डिंग राइट सो बिल्डिंग का फाउंडेशन क्या है वंस अगर फाउंडेशन वीक है सो बिल्डिंग इज नॉट गोइंग टू स्टैंड राइट सिमिलरली अ पेरियोडोंटिस्ट इज समवन जो आपके दांत के फाउंडेशन को ट्रीट करता है विच आर योर गम्स योर बोन देयर योर लिगामेंट्स जो आपके दांत को होल्ड कर रहा है सो वी आर द वंस जो आपके पूरे फाउंडेशन ऑफ दांत को वी टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स राइट सो एज अ पेरियोडोंटिस्ट एज एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट इट्स सी एवरीथिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स हर हमारे अब लेट मी जस्ट टॉक आई डोंट नो इट विल बिकम अ टू लॉन्ग योर थिंग टू से मैं बैठ अगर समझाने बैठूंगी हर एक चीज़ human anatomy is very complex and it's different for everybody
ऐसा नहीं है कि अगर ये पेशेंट पे ये है तो नेक्स्ट पेशेंट पे भी वही चीज़ होगी, Yes, नो, yes. इट्स वेरी डिफरेंट। आपकी एनाटमीज अलग है, आपका कोई ब्लड वेसल्स ऐसे किसी का इस एक वे से आता है, किसी का एक वे से आता And है, वी नीड टू I टेक केयर। believe there are a lot of case studies as well. यस यस। सो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें देखनी पड़ती है। हमने एआई में एक चीज़ फिक्स कर दी, ज़रूरी नहीं है दूसरे पेशेंट पे भी वही वो Exactly. उसी डायरेक्शन में या उसी जगह पे हो वो चीज़ें। तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट इन दैट वे। एंड सो आई वुड डेफिनेटली से कि AI cannot take over a human thing, a dentist or a doctor जो उनकी knowledge obviously 8-9 साल से वो पढ़ के आए हैं, it's difficult to take over it completely. But then हाँ, it can be like working together. जो simple procedures होंगे maybe that can be done by AI. But then जो complexities आएंगी plus आपकी जो treatment planning होगी plus that human touch plus empathy. Up nobody will want to go to a hospital and just AI coming and doing your stuffs and going. Exactly, no, You no. will need to sit and understand क्या it's your body, you need to know क्या problem हो रही है, कहाँ क्यों हो रही है ये problem. AI आपको बैठ के वो नहीं समझाएगा, वो अपना काम करेगा निकल जाएगा, Yes, right? yes. So I think we all crave for that human touch. Again, that's the whole thing I say, and that empathy towards another human being, because वो खुद एक एक कोई चीज़ से आ रहा है, वो कोई पेन से आ रहा है या there's some Understanding problem. the Yes, pain yes. So also. I think that is very important. As a human, we all need that emotional thing, that empathy for each other. So I think that can never be done by AI. Yes. So So humanness is always, they're intact. yes, yes. It's much needed. Yes. That is something we all need. Like, at the end of the day, we all need a place where our comfort place, right? So, but then, we are always equipping with the technological advancements. Like, without phone, now we can't, go anywhere. Like, phone has been part of our body as well. So, right now, whatever treatments are going on for the children, so after maybe 10 years, will it change or will it advance or how would be the picture if you could enlighten Definitely, us? things are changing, and future is very good, definitely, because we are advancing in that zone, that field, जहाँ पे हम और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को ला रहे हैं. स्टिल स्टडीज़ चल रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं अभी भी. इट्स जस्ट दैट कि आना है जब वो अपने टाइम पे आएगी चीज़ें. But then yes, definitely I see a very good future when it comes to dentistry, when it comes to your skin procedures, hair procedures. Abhi hair growth kitni problem, like if it's a problem for everybody. Everyone, Hair everyone, fall, yes. hair growth, Even with the children Yes. also. So वो सारी चीज़ें अभी भी we have treatments for that. अभी already like in my clinic I use PRP, stem cells therapy, hair transplants. वो सब कुछ मेरे clinic पे भी use हो रही है हर चीज़ें. So definitely it is evolving, it is advancing, and in near future we can actually see और बहुत ज़्यादा advancement about things को लेके. So definitely a future looks very bright when compared to things that are right when now. we talk about children, like how PRP and stem cells are how much good for children? ओके, बेसिकली आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि न्यू टीथ ग्रो हो रही है स्टेम सेल से, बट अभी फ़िलहाल वी आर नॉट यूजिंग दोज थिंग्स. इट्स स्टिल अंडर स्टडीज़ हो रही हैं, रिपोर्ट्स बन रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं चीज़ों के बारे में. बट येस, PRP स्टेम सेल्स मैं जैसे मैंने बताया मैं खुद अपने क्लिनिक में यूज़ करती हूँ फॉर स्किन, फॉर हेयर, एंड इट्स गिविंग अमेजिंग एंड एक्सलेंट रिजल्ट्स, लाइक अमेजिंग रिजल्ट्स. इवन लाइक स्किन PRPs हम करते हैं. PRPs क्या है? इट्स बेसिकली योर ओन ब्लड. हम आपके ब्लड लेते हैं, वी सेंट्रीफ्यूज इट, एंड देन व्हाट वी गेट इज़ अ प्लाज्मा, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स होता है. जब प्लेटलेट्स का हमें जो एक लेयर मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स होता है, तो हम उसको लोकली फिर डिलीवर करते हैं, सो दैट आपके जो भी सपोज स्किन ब्राइटनिंग, स्किन रिजुविनेशन, रिंकल्स जो आपके स्किन में आ जाते हैं, सो ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करता है, बिकॉज ग्रोथ फैक्टर्स भर भर के होते हैं उसमें. अगेन कमिंग टू योर हेयर, जिनके हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो वंस इन अ मंथ वी गिव देम अ स्टेम सेल थेरेपी, जिसमें हम उनका ब्लड लेके सेम थिंग ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट करते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली अ पेनलेस प्रोसीजर, कोई पेन नहीं है, बिकॉज नीडल्स विच आर यूज आर दोज इंसुलिन नीडल्स
जो मतलब you won't even know what is happening, you know, everywhere. So ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यूज़ हो रही है, स्पेशली इन माई क्लिनिक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ PRP therapies and stem cells and GFCs because they give amazing results. And downtime भी बहुत ज़्यादा नहीं है, just like 4 to 5 days में you're ready to go like everywhere. So it's an amazing thing which has come. Plus, even in my perio surgeries, I use stem cells and PRFM, and because ये सारी चीज़ें मैं समझाने बैठूंगी तो it's gonna be like too long. So basically ये सारी चीज़ें आपके blood के derivatives है जिसमें भर भर के growth factors है. Okay. सो इवन फॉर योर बेसिकली क्या चीज़ हो जाती है ना, आपके जो गम्स होते हैं, बोन होते हैं मुंह के, वो रीजनरेशन में जो काम आती है हमें ये चीज़ें. अगर हमको कुछ भी चीज़ रीजनरेट करना है, एक टिश्यू लॉस हो गया है आपका, उससे हमें रीजनरेट करना है, देन दीज आर एक्सेलेंट थेरेपीज Okay. फॉर रीजनरेटिंग योर टिश्यूज. Okay. So even for oral surgeries also, we actually use all these things, and this gives amazing results. Okay, so you know, I believe that you do surgery on the daily basis. Yes, And you yes. treat kids as well. Yes, yes. So you know, what is the best part treating or a kid? I guess just seeing them smile. That's the best thing, I guess, you know. आते हैं that's what I saw you, रोते रोते डरे डरे आते हैं वो लोग, but once they go they are एकदम happy, you know. मुझे हाई फाई दे के जा रहे हैं, they become my friend, you know, mostly. So patience नहीं रहते हो जब तक वो जाते हो, मेरे दोस्त बन चुके होते हैं. So I think that's the best part about kids. Once they understand, you know, I had a patient जिन्होंने I think it's been more than a year since I treated him. He's I think 5-6 years old. एंड कैविटीज़ थे दांतों में, मैंने फिल किया, मैंने बोला नहीं बच्चा आपको अभी ना चॉकलेट्स ऐसे ऐसे खाने, चॉकलेट्स खाओ, ऑब्वियसली उनके एज में नहीं खाएंगे तो हमारे एज में वैसे भी हम नहीं खा सकते. सो इट्स एक चॉकलेट्स खाओ, बट उसके बाद क्या क्या आपको चीज़ें करनी है, क्या करना है क्या नहीं. टुडे ऑल्सो वेन एवर ही वॉन्ट्स टू हैव अ चॉकलेट, मतलब वो नहीं खाता है, ही इज़ लाइक कि नहीं मुझे नहीं खाना, मैम ने मना किया है चॉकलेट खाने के लिए. एंड देन उसके पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, मैम इसको बोल दो एक खा लेगा, बिस्किट खा लेगा एटलीस्ट, हम कि हमें बाहर जाना है. एंड व्हेन आई टेल हिम ओवर अ कॉल यू कैन हैव इट, ओनली देन ही हैव्स इट, यू नो. सो दिस इज द इम्पैक्ट व्हाट दैट किड हैड, लाइक यू नो. एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि वो इतने छोटे एज से समझ रहा है चीज़ों को, बिकॉज वो ऑब्वियसली आपके दांतों की लॉन्जिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इफ़ यू फॉलो थिंग्स. बिकॉज वी आर सीइंग अभी भी लाइक बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं वो जस्ट 20-21 अच्छे खासे दांत है, बट देन ऑब्वियसली पूरे कैविटीज लगे हुए. yes. सो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, वो अवेयरनेस आनी ज़रूरी है कि हाउ योर ओरल हेल्थ एक्चुअली प्लेज अ रोल, एंड योर ओरल हेल्थ इज़ एक्चुअली अ विंडो टू योर ओवरऑल हेल्थ. हम मुंह देख के बता सकते हैं आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, आपको थायराइड है कि नहीं, आपको बॉडी में क्या क्या इश्यूज है. देयर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैड कम एंड यू नो दे वर लाइक नहीं मैम हमें तो शुगर नहीं है. मैंने बोला प्लीज़ मेरे पॉइंट पे एक बार चेक करवा लीजिए आप. एंड देन जब आते हैं हाँ मैम मैं शुगर तो बहुत हाई है, मैम आपको कैसे पता चला मुंह देख के. सो डेंटिस्ट्री इज एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर यू नो दिस पार्ट, इट्स अबाउट इट्स अ विंडो टू योर ओवरऑल हेल्थ. वी गेट टू नो सर्टन थिंग्स कि आपके बॉडी में क्या क्या चल रही है. एसिडिटी होता है, द फर्स्ट थिंग आई आस्क माय पेशेंट, मुंह देखते एसिडिटी है, हाँ मैम बहुत ज़्यादा. सो यू नो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर. जब हम बोलते हैं इट्स अ विंडो, इट्स एक्चुअली अ विंडो टू योर ओवरऑल हेल्थ. सो अगर बच्चे इस एज में समझ जाए चीज़ों को, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया वो बच्चे का, अगर वो समझ रहा है इस चीज़ को, इमेजिन कि उसकी लॉन्जिटिविटी दांतों की कितनी अच्छी हो जाएगी. Exactly. सो ऐसे बच्चे अगर आते हैं जो समझते हैं चीज़ें, उसको देख के एक और बच्चे इन्फ्लुएंस हुआ था. एंड देन ही ऑल्सो केम टू मी फॉर अ चेकअप एंड दे लाइक नहीं 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 मैम ने बोला है ये नहीं करना ये नहीं करना. अच्छा मैम ने बोला है 2 बार ब्रश करना है, हमें ब्रश करना है. दे जस्ट टेक एंड स्टैंड कि मम्मा ब्रश करवाओ. सो दिस इज़ अ गुड थिंग व्हेन देयर पेरेंट्स कम एंड टॉक ये सब चीज़ें एंड दे टेल मी कि यू नो पूरा का पूरा मैम वो आपका हो चुका है करके ना. सो दिस इज़ अ गुड थिंग. आई थिंक दिस इज़ लाइक तब मुझे लगता है कि चलो एटलीस्ट कुछ अच्छा कर रहे हैं हम. Yes, yes. And you know, from like you know, I will be asking few layman questions Sure, to you sure, because sure. you know kids will be watching, and Right. I believe there is also a kid in me. I have a lot of chocolates inside my bag also. So how So much? I should see your mouth. I should just give it, like, you know, How check your mouth. much? How much chocolate we have? We can have. How much? How much? How much is too much? So basically, see, having chocolates is not a bad thing.
ठीक है, सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ दिस मैकेनिज्म्स वर्क, ठीक है, एंड देन मे बी आई कैन टेल यू हाउ मच इज टू मच. सो बेसिकली आपने क्या किया, आपने चॉकलेट खाया, यू वेंट ऑफ टू स्लीप, राइट. व्हाट हैपन्स इज आपके वो चॉकलेट्स के वजह से जो हमारे हमारे मुंह में ना गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड Bad बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है. अब क्या होता है, आपने वो खाया चॉकलेट, आप सो गए, आपने ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया, यू हैवंट क्लीन्ड इट. अब क्या हो गया आपके, वो स्टिकी फिल्म जैसा एक मुंह में प्लाक जिसको हम बोलते हैं, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग ओवरनाइट. दैट्स व्हाई वी से अगेन 2 times ब्रश करना चाहिए, बिकॉज वो प्लाक को हमको डिसरप्ट करना है, ठीक है. तो अगर आपने नहीं किया ये सारी चीज़ें, तो क्या हो जाएगा कि वो प्लाग फॉर्मेशन शुरू हो गया. अब वो स्टिकी स्टिकी प्लाग बनता है. प्लाग इज़ व्हाट, अगेन योर बैक्टीरिया, जो ब्लैक बैड बैक्टीरिया है वो आपके मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं. एंड वो क्या करते हैं, वो शुगर पे जाके बैठते हैं. वो शुगर पे जाके बैठे, एक एसिड रिलीज होता है वहाँ पे, एंड हेंस द कैविटीज एंड एवरीथिंग. Okay. दैट्स व्हाई वी It से damages इट our डैमेजेस आपके टीथ के 3 लेयर्स है, बेसिक लेयर्स. एनामल जो सबसे ऊपर आपको वाइट वाले लेयर दिखते हैं, उसके नीचे डेंटिन होता है जहाँ से आपकी सेंसिटिविटी शुरू होती है. उसके नीचे आपका पल्प होता है, विच इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ योर टूथ, जहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स होते हैं, ठीक है. सो बेसिकली आपका जो एसिड फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल एंड शुगर का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो एसिडिक जो रिलीज होता है, वो आपके एनामल को इरोड करती है वो चीज़ें. उसकी वजह से आपको कैविटीज़ होते हैं. एक बार कैविटी पकड़ लिया तो यू हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट. इट इज़ जैसे आप, दिस इज़ द ओनली पार्ट आप योर बॉडी में जो सेल्फ रिजुविनेशन नहीं होता है, सेल्फ रीजनरेट नहीं होती है वो चीज़ें, बिकॉज लिविंग सेल्स नहीं है हमारे दांतों में. सो वो रीजनरेट नहीं होती. एक बार इट्स डैमेज्ड फॉर लाइफ. दैट इज़ द रीज़न वी से एवरी 6 months आप विजिट करो डेंटिस्ट को. बिकॉज अगर कुछ भी चल रहा है, थोड़ी सी भी कुछ आ रही है, हम उसी से इमीडिएटली उसको क्योर कर देते हैं, रादर देन यू टेक इट टू अ डीपर लेवल एंड देन पेन है सब, पस निकलना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाए. सो दैट इज़ द रीज़न वी से एवरी 6 months प्लीज़ गेट योर सेल्फ चेकड, गेट योर ओरल हेल्थ चेक, ब्रश ट्वाइस अ डे, फ्लॉस अ डे. सो ये सारी चीज़ें एक रीज़न है वाई दिस इज सेड. Yes. या And again, layman's question. So, like, how much it is bad if we do not brush twice a day? I think I just answered that. Basically क्या, एंड स्पेशली कमिंग टू द चॉकलेट्स वाली चीज़ जो थी कि कितने खा सकते हैं. आप खा सकते हो, फर्स्टली तो अवॉइड करो आप जो स्टिकी वाले चॉकलेट्स होते हैं, लाइक योर 5 स्टार एक्लेयर्स. ये सब क्या होता है, स्टिक कर जाते हैं आपके दांतों में, राइट. सो एंड वी ऑल्सो हैव शुगर फ्री गमीज जो आजकल आते हैं फॉर किड्स. आपके एक्चुअली जब आप शुगर फ्री गम्स खाते हो, च्युइंगम्स खाते हो ना, दैट्स एक्चुअली गुड फॉर योर माउथ ऑल्सो, क्योंकि वो सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ाता है. सो वंस दैट सिक्रीशन इज इंक्रीज, वो सेल्फ क्लेंस कर देता है पूरे एरिया को. सलाइवा इज बेसिकली क्लेंजिंग, इट्स क्लेंजिंग योर माउथ, राइट. अब जो सलाइवा का अगर फ्लो आपका कम होता है, जैसे हम ओल्ड एज में देखते हैं सलाइवरी फ्लो डिक्रीज हो जाती है, तो उसके वजह से उनको और प्रॉब्लम्स आने लगती है, ड्राई माउथ होने लगता है. अब ड्राई कुछ भी है तो वो बैक्टीरिया का और ज़्यादा हार्बर बन जाएगा, इट विल बिकम अ नीश फॉर द बैक्टीरिया. लेकिन अगर आपका ऑलरेडी, आप सपोज आप कोई चीज़ में पानी डाले जा रहे हो, वो क्लीन हुए जा रहा है साथ साथ, लेकिन आपने छोड़ दिया है तो वहाँ पे जमनी शुरू हो जाएगी चीज़. इट्स सेम थिंग फॉर योर माउथ. सो चॉकलेट्स आप खाओ डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग मत खाओ, बट काइंडली प्लीज ब्रश आफ्टर यू हैव चॉकलेट्स, एटलीस्ट रिंस योर माउथ विथ वाटर, एंड स्टिकी चॉकलेट्स को अवॉइड करो बस. ऑल दिस कैंडीज शुगर फ्री, सी नथिंग इज़ 100% विदाउट शुगर. बहुत सारी चीज़ें अभी शुगर की जगह जाइलिटॉल डालते हैं उस चीज़ में. जाइलिटॉल इज अगेन अ शुगर अल्कोहल विच इज़ अ नेचुरल शुगर अल्कोहल जो हम देते हैं बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते चॉकलेट्स. तो दीज आर ऑल्टरनेटिव्स, बट 100% शुगर फ्री कुछ भी नहीं है. इफ़ यू आर ईटिंग तो वो चीज़ें तो रहेंगी आपके अंदर, बट देन येस, अ गुड ओरल हाइजीन, ब्रश करना, फ्लॉसिंग करना, एटलीस्ट अच्छे से पानी से रिंस करना, सो दैट नथिंग स्टिक्स ऑन योर टीथ एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन योर टीथ ओवरनाइट या कुछ टाइम के बाद. तो आई थिंक दीज थिंग्स आर समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ. बाकी चॉकलेट्स खाओ, इट्स ओके, चॉकलेट्स आर मेंट फॉर ईटिंग, सो इट्स ओके. And also, like, it is said that, body का हम लोग का मुंह है ना, जो oral, this is the only place we have most, bacteria. Yes. So we have to, rinse and clean Yes. it properly. Very true. And your oral health is actually linked to a lot of systemic diseases like your heart diseases, your respiratory diseases.
प्री टर्म बर्थ हो जाते हैं, लेबर पेन प्री टर्म हो जाता है अगर आपकी माउथ बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्टेड है, बिकॉज ऑलरेडी आपके बैक्टीरियाज कहाँ बैठते हैं, गम लाइन में बहुत ज़्यादा बैठते हैं, वहाँ पे क्या है, ब्लड फ्लो है आपका, ब्लड फ्लो के साथ साथ बैक्टीरिया आपके पूरे बॉडी में जा रहा है, इट्स एब्जॉर्बिंग इन योर होल बॉडी, इट अफेक्ट्स एवरी ऑर्गन इन योर बॉडी, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड है, डायबिटीज़ से रिलेटेड है सबसे ज़्यादा. सो it's actually your oral hygiene is linked to your systemic health. अगर आप अपना माउथ क्लियर रखते हो, क्लीन रखते हो, ओरल हाइजीन मेंटेन करते हो, एंड दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, जस्ट ब्रश ट्वाइस एवरी डे, करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग अगेन. 99% of people, they brush wrongly, they do not know how to brush their teeth in the correct way. So please, I would just request ki to visit your nearby dentist and at least get to know ki correct way of brushing kya hai. There are people who are 60 years old and they come and they, मैम हम तो ऐसे ब्रश कर रहे हैं 60 years से, I mean दिख रहा है वो आपके मुंह में अंकल. So that is how you know things are. And after just seeing the mouth, we get to know ये person brush कैसे कर रहा है. So correct way of brushing is important. बहुत simple सी चीज़ें हैं. Brushing twice a day, flossing and just keeping your mouth clean. That's all. And 6 months में please अपने dentist को visit कीजिए. Because कुछ भी हल्का सा भी शुरू हो रहा है आपके मुंह में ना, again I'm saying ये सब क्यों, because your teeth are the only thing in the body जो self regenerate नहीं कर पाती है. And also, like, you know, if your teeth is looking bad, then it will eventually affect your personality Yes, too. yes, definitely. It's एक looking वाली चीज़ एक अलग है. Appearance, again, aesthetics is a separate thing. Yes. First thing is healthy mouth. Bacteria free. It cannot be bacteria free, but then good bacteria in your mouth, not causing harm into your mouth, right? So looking is again secondary. Agar looking is all about how confident you are. Looking is never related to, you know, कि आप कैसे दिख रहे हो. Everybody is different. All of us are different. And we are all beautiful in our own ways, right? So appearance is again different. First is to have a healthy mouth. अगर आपकी माउथ हेल्दी है, आपकी कॉन्फिडेंस वैसे भी अच्छी आएगी आपके पास. स्पेशली पीपल हु से, यू नो, देयर आर फ्यू पीपल जो हम बात करते हैं, देयर इज दिस हालेटोसिस थिंग जो बैड ब्रेथ वाली चीज़ होती है, राइट? सो ये सारी चीज़ें ना आपको खुद इवेल्युएट आप कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही, लेट मी जस्ट गो विजिट अ डेंटिस्ट. सो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद भी इवेल्युएट कर सकते हो. यू डोंट नीड अलग से अ डेंटिस्ट फॉर दिस. यू आर फीलिंग कि अच्छा हल्का सा सेंसिटिविटी शुरू हुआ है, नो अभी मुझे जाके एक डेंटिस्ट को दिखा लेना है, सो दैट इट डजंट प्रोसीड फर्दर. सो हेल्दी माउथ इज इम्पॉर्टेंट. Appearances can be changed. We have a lot of things to change your appearances. और as you said, AI, science, इतनी ज़्यादा अभी एडवांस हो गई ये चीज़ें कि appearance हम चेंज कर सकते हैं. बट वो हेल्दी माउथ की जो चीज़ होती है, जो सब में होनी चाहिए, वो चीज़ की अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है. So I wanted to, you know, share one of very bad experience I had when I was a kid. So we used to get that, you know, small 1 rupee wala what Was orange candies? No, not orange candies. It was milk candies. Yes. That sticky one. very sticky the one. Rabbit. Are you talking about the rabbit? Rabbit one is more softer version. The hard one. The hard one. Yes. One fine day, like it was evening, I just, you know, मतलब किसी ने, मतलब घर पे वो आए थे, गेस्ट आए थे, and then they just brought sweets, and then उसमें वो था, and then I had that sweet, and then I tried to chew my upper wala, what do we call this? Molars. Yes, this teeth. It just, you know, came down with the with that the chocolate. chocolate. And it was so painful. I was crying. Like, I think that was your milk teeth. Your milk tooth, right? Yes. Thankfully. Yes. And then obviously they, like, when kids, like, you know, get out their teeth, they will look fine, they will look little bit cute, but why when they are, you know, they are in the age, they have to, you know, take out the teeth. Why is that, like, how? Okay, I get your question. So basically जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, those are the place holders for your permanent teeth. अब जब आप बच्चे हो, आपके जॉज बहुत छोटे हैं. जो हमारे प्राइमरी टीथ होते हैं या मिल्क टीथ होते हैं, हमारे मुंह में 20 नंबर होते हैं. एज यू ग्रो,
योर जॉ ऑल्सो ग्रोज. आपने देखा होगा बचपन में जैसे आपके जॉ थे वैसे तो अभी नहीं है, इट हैज़ ग्रोन, राइट. तो जब आपके जॉ ग्रो होते हैं, ऊपर जो आपके मिल्क टीथ है, नीचे आपके जो परमानेंट टीथ आ रहे हैं वो पुश करते हैं आपको. इट अप्लाइज प्रेशर आने के लिए, एंड उसका जो रूट होता है जो प्राइमरी टीथ का, वो फिर एब्जॉर्ब होके इट गिर जाती है, एंड देन योर सेकेंडरी टूथ कम्स. बिकॉज आपका जॉ ग्रो हो रहा है, आपका दांत उतना का उतना है, हाउ विल यू लुक? दैट्स इवोल्यूशन. ये चीज़ हो रही है. And one more thing, like while having their milk tooth only, kids have a lot of chocolate intake, and then pura cavity, ekdam cavity. So will it affect to the new tooth as well? Not really. I wouldn't say really. But then yes, you need to visit your dentist. कि अगर वो एज आ गई है जहाँ पे उनके दांतों मतलब 6 years से वी स्टार्ट सेइंग परमानेंट टीथ आ जाते हैं. सो अगर वो बच्चा अराउंड 5.5 years का है तो ट्रीटमेंट प्लान थोड़ी अलग होती है हमारी. अगर वो बच्चा 2-3 साल का ही है, अगेन द ट्रीटमेंट प्लान विल चेंज, बिकॉज आपको वो दांत 3 साल और रखने हैं. अब क्या हो जाता है, आपने अगर 2 साल में वो दांत निकाल दिया, आपके जो नीचे से जो दांत आ रहे हैं वो आपके उनको जगह ही नहीं मिल रहा है. वो 6 साल में ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो उससे पहले आ जाएंगे. वो 5.5, 6.5, 7 years में ही आएंगे वो दांत आपके. बट वहाँ का क्या हुआ, वो स्पेस पूरा चला गया है आपका. आपके जॉ ग्रो कर रहे हैं, वो स्पेस है ही नहीं वहाँ पे. सो वी हैव टू अगेन गिव अ स्पेस मेंटेनर वहाँ पे, अगर हम 2-3 साल के बच्चे का करते हैं ये चीज़. सो प्लान्स चेंज अकॉर्डिंग टू एज. कि अगर 5.5 year का बच्चा है, हम निकाल देते हैं क्योंकि 6 years में आना है वो दांत. विद इन 6 months विल गेट अ न्यू टीथ. सो ऐसा नहीं है कि वो इफ़ेक्ट करता है आपके नीचे का दांत, बट येस अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है तो इट डज अफेक्टेड. बट ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा कि वो दांत में भी कीड़ा लगा हुआ आएगा, जो ये बहुत पेरेंट्स आके बोलते हैं कि Yes, नए yes. दांत आ रहे हैं उसमें भी कीड़ा लग जाए. वैसी यूजुअली नहीं होती है चीज़ें. बट देन अगेन बच्चे को बचपन से एक वो चीज़ सिखाना कि हाउ टू मेंटेन योर ओरल हेल्थ, दैट इज़ ऑलवेज गुड. बिकॉज वो जब नए दांत, बिकॉज मिल्क दांत तो गिर जाते हैं, वंस योर परमानेंट टीथ कम्स वो नहीं गिरते हैं, वो आपके साथ हमेशा आपके एंड तक रहते हैं. सो मेंटेनिंग दैट थिंग अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. So, talking about braces, I have heard that it is very painful. So, what is good for children? सी फर्स्टली एक बहुत बड़ा मिथ है ब्रेसेस के बारे में कि सिर्फ बच्चे लगा सकते हैं. इट्स नॉट दिस थिंग. येस डेफिनेटली 7 years to 12 years इट्स अ गुड टाइम, बिकॉज उस टाइम पे आपका जॉ ग्रो कर रही है चीज़ें. सो लेटर ऑन अगर बहुत कुछ बड़ी आने वाली है तो दैट कैन बी सॉल्व्ड बिफोर हैंड. इवन इन मिक्स डेंटिशन जहाँ पे आपका आधे परमानेंट टीथ है आधे मिल्क टीथ है, ऑर्थो कैन बी डन. ऑर्थो ट्रीटमेंट इज ब्रेसेस ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक्स हम बोलते हैं, ठीक है. सो ब्रेसेस आते हैं आपके, अलाइनर्स आते हैं, रिटेनर्स आते हैं, काफ़ी कुछ आती है आपकी इसमें. प्लस ब्रेसेस ऑल्सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस. तो वी नीड टू सी इवेल्युएट कि आप इस बच्चे को कौन सी ब्रेसेस चाहिएंगे. वी हैव सम फेशियल सपोज आपका हम वी आर सीइंग यूजुअली क्या होता है, ऊपर वाला जॉ जो हमारा होता है एंड नीचे वाला होता है. तो ऊपर वाला जॉ नीचे से आगे होता है, राइट. व्हेन यू आर बाइटिंग यू गेट टू नो आपका ऊपर का जॉ आगे है. इन सर्टन किड्स क्या हो जाता है ना, ड्यूरिंग दैट ग्रोइंग स्टेज जब आपका जॉ भी ग्रो कर रहा है, तो डाउन वाले ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं. Okay. सो टू पुल इट बैक वी ऑल्सो हैव दोज फेस गियर्स, हेड गियर्स एंड ऑल, कि उसी टाइम पे हम उसको स्टॉप कर देंगे. अगर ऑब्वियसली वो चीज़ हो गई है आफ्टर 12 या 13 years, आपका जॉ ग्रोथ पूरा हो गया है, देन वो पूरा सर्जिकल जाता है. फिर उसको ठीक करने के लिए हम वी हैव नथिंग, वी ओनली हैव टू टेक इट सर्जिकली. So, are braces like painful? They are not painful. Obviously, suppose Uncomfortable. now I'm just giving you an example. You're wearing a specs, right? जब आपने पहले specs पहनना शुरू किया था, how was the experience? Obviously, it will take time to adjust, right? हम कुछ भी नया करते हैं या कुछ भी नए अपने बॉडी में करते हैं, so it takes little time to adjust. It's not painful, but yes, starting के हफ्ता 10 दिन it's a little discomforting. एंड स्पेशली किड्स के लिए बिकॉज वो चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे किड्स के लिए. एज अ एडल्ट वी अंडरस्टैंड कि हाँ हमने ये चीज़ किया है तो देयर इज़ गोना बी थोड़ा टाइम लगेगा टू एडजस्ट. बट बच्चे को समझना वो चीज़ बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम. बट देन
आप आगे बहुत, जैसे मैंने बोला कि अगर ये सारी चीज़ें होती तो फिर सर्जिकली चीज़ें चली जाती है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या बचपन में ही करा लो. इट टेक्स 18 to 22 months. ऑर्थो ट्रीटमेंट लास्ट फॉर 18 to 22 months. 24 months तक भी कर सकते हैं मैक्स. ठीक है. And उसके बाद टू मेंटेन, टू कीप दैट, जो अपने आपके जगह से आपके दांत हिले हैं, टू कीप दैट इन प्लेस हम रिटेनर्स देते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 months. सो दैट्स व्हाट रिटेनर्स आर. रिटेन मतलब जो हुआ है उसको रिटेन करना. जो आपके दांत मूवमेंट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ ब्रेसेस, वो उस पोजीशन में उसको रिटेन करता है, बोन फॉर्मेशन अंदर हो जाती है, एंड देन वी रिमूव इट ऑफ. So, सो with or without braces, like, can we, be okay? यस डेफिनेटली. जब तक आपको बाइटिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपकी बाइट सही से हो रही है, आपको अपीयरेंस में प्रॉब्लम नहीं आ रही कि नहीं यू आर ओके विथ योर अपीयरेंस, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बेसिकली ऑर्थो इज नॉट जस्ट अबाउट योर कि आपको ब्रेसेस लगाने ही हैं. एक है तो है कि आपके फंक्शन को भी बेटर करता है. बहुत टाइम हम देखते हैं कि ऊपर एंड लोअर का जो दांत होता है दैट इज़ नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, तो हमको फिर ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं टू मेक दोज थिंग कम इन कॉन्टैक्ट, राइट. एंड बहुत सारे ऑक्लूजल जो डिस्क्रिपेंसीज होती है, जैसे आपके, हम यूजुअली क्या होता है, हमारा दांत ऐसे आता है, राइट, ऊपर वाला नीचे वाला, एंड देन देयर इज अ स्टॉप. दैट्स हाउ यू बाइट व्हेन टू टीथ कम टुगेदर. सो अगर वो चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपके दांत इधर हिले हुए हैं, एक दांत है कहीं इधर हिले हुए, तो आपको वो बाइटिंग में प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आपको यहाँ जॉइंट जो हमारा होता है, व्हेन यू ओपन योर माउथ यू कैन सी देयर इज अ जॉइंट हियर, यू कैन फील इट जस्ट बिफोर बिफोर योर ईयर का थिंग. तो उसमें धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगती है बिकॉज ऑफ द ओक्लूजल प्रॉब्लम्स जो होती है हमारी. Okay. सो अगर जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन इसलिए हम बोलते हैं हमेशा कि बच्चों को एक बार डॉक्टर के पास लेके जाओ, डेंटिस्ट के पास आप लेके जाओ. दे विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि अच्छा इज इट रिक्वायर्ड और इज इट नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, सो दैट फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना, उस टाइम पे आपको चीज़ों को बहुत उस लेवल तक नहीं लेके जाना. पर तो बचपन में ही अगर आप ट्रीटमेंट करवा लेते हो चीज़ों को लेके, इफ़ इम्पॉर्टेंट अगेन, ऐसा नहीं कि हर बच्चे को चाहिए. आई थिंक आई फील योर टीथ इज कम्प्लीटली गुड. एंड सो बट हाँ, जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ Yeah. करवानी ज़रूरी है. All thanks to my mom. You got it in your Yeah, genes. yeah, no, no, not in her genes, but she was the one who did not let me and my sister have, single chocolate when we were Okay. kids. Like, इसलिए you're yeah, eating it now, right? कभी कभी वो गेस्ट आते थे, and then obviously we would have. Other than that, मम्मी चॉकलेट खरीद के दो, she would Never never, buy for you. never. She would fine. rather, make something at home itself. That's so sweet. Yeah, that's the best thing actually. Because obviously वो आपको घर का भी मिल रहा है, plus you're getting obviously वो एक अच्छे environment में बना हुआ है, healthy, good Yes. environment. So that's the best thing to do. And this is like the era of social media, where parents, they are also, showcasing the trophy they have, like their little kid. So, for parents, looks in their child is also one of the, important factors. So if child does not want to have braces, or they are forced to, what is the suggestion, or what is the kind of, thing you would like to tell to those parents? इसमें I think parents की counseling करनी पड़ेगी. So Because we have seen that. yes, We have even I see that. That uh, is normal. yes. सी फर्स्टली, आप अगर बच्चे को ही उस टाइम पे बोल देते हो ना कि हाँ ये आपको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एंड द किड इज़ लाइक नो आई एम ओके, आप उनको एक डेंटिस्ट के पास लेके जाओ. लेट द डेंटिस्ट एग्जामिन आपको क्या क्या ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है. अकॉर्डिंगली लेट द डॉक्टर एक्सप्लेन इट टू द किड. अगर ज़रूरत है वो समझाएगा, बच्चा ये चीज़ें हैं, बाद में जाके आपको ये इश्यूज हो सकते हैं, अभी आप करवा लोगे तो यहीं पे रुक जाएगी चीज़ें. एक तो आप बच्चे को समझा सकते हो, पर जहाँ ज़रूरी नहीं है तो वो प्रेशर में आके कुछ नहीं करना है. आई नो इट्स अ एरा ऑफ सोशल मीडिया, बट देन दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द, आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा या पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ बहुत अलग होती है. विद दोज एडिटेड फोटोज एंड और कंपेरिजन्स, ये सारी चीज़ें ना आप बच्चों को और ज़्यादा कहीं ना कहीं आप एक बच्चे के दिमाग में ये चीज़ डाल रहे हो कि लुक सब कुछ है, एवरीथिंग इज लुक्स. ऐसा नहीं है. सी आई कैन टॉक अबाउट स्किन कलर, जो बहुत ये होगा, वी ऑल हैव डिफरेंट स्किन कलर्स, राइट.
So, doctor, this generation is all about social media, the real thing, and the parents who consider their child to be the prominent figure at social media also. So, how important it is that having braces for our kids, and like while they forces children, how important it is to understand the parents that we shouldn't force a child to have braces, or we shouldn't force a child is like a clay, it is very Fragile. fragile, Yeah. and then forcing to do something, you know, if they are not liking, how would you like to address this scenario? Okay. So basically, if a parents want that for their kid, it's nothing wrong in that. ठीक है, ऐसा नहीं कुछ गलत चाह रहे हैं Yes, वो yes. लोग. But then yes, it shouldn't be pressurized. Like अगर genuinely required है, let's say you take the child to the dentist. I think we are the best people to judge उनको चाहिए कि नहीं चाहिए braces. एंड अकॉर्डिंगली इट शुड बी प्लान्ड. अगर ज़रूरत है डेंटिस्ट आपको खुद बोल देगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, बाद में ये इश्यूज हो सकती हैं, तो कंसिडर कीजिए, आप अभी लगवा लीजिए. और अगर ज़रूरत नहीं है वो भी उस टाइम पे आपको बोला जाएगा. सो प्रेशराइजिंग नेवर वर्क्स आई थिंक, बिकॉज अल्टीमेटली 2 साल वो बच्चे को लगा के रखना है. बच्चों की आई एम नॉट सेइंग इट्स पेनफुल, बट दिस डिस्कम्फर्ट एक लेवल Yes, की yes. होती है चीज़ों में, एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. बट देन हाँ, प्लीज़ फॉलो योर डेंटिस्ट, दैट्स ऑल आई वुड से, बिकॉज दे आर द बेस्ट पीपल हु कैन एक्चुअली गाइड यू वेल कि फ्यूचर में क्या क्या इशूज़ आ सकती है इसकी वजह से, या आपको नहीं चाहिए तो ज़रूरत नहीं है अभी आपको ये सारी चीज़ों की. सो येस डेफिनेटली, एंड डेंटिस्ट कैन एक्सप्लेन द किड कि ये चीज़ें आपको बेटा हो सकती है प्रॉब्लम बाद में. सो आप अगर अभी समझ जाते हो, अभी कर लेते हो, तो बाद में आप देखो स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, तो ये सब इश्यूज नहीं आएंगे. दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन आवर पेशेंट्स. Yes, yes. बिकॉज वो 12-10 के बिलो ना, पीपल लाइक क्लास 10 के नीचे बच्चे फिर भी करवा लेते हैं. बट ऑब्वियसली वंस एक प्यूबर्टी एज आ जाती है ना, तो पीपल लिटिल हेजिटेंट, बच्चे हेजिटेंट, अच्छा नहीं ब्रेसेस नहीं लगवाना, मैं कैसी दिखूंगी, कैसा लगूंगा मैं. Yes. तो वो एक ऑब्वियसली दैट कम्स विद एज, वी ऑल हैव बीन थ्रू दैट एज वे एक प्यूबर्टी वाली एज जो आती है, तो इसीलिए. एंड प्लस ऑर्थो पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बोलते हैं 7 to 12 years आर द बेस्ट एज टू गेट योर ऑर्थो ट्रीटमेंट डन. Okay. ऐसे कोई बेस्ट एज होती नहीं है, आप 40 में भी करवा सकते हो ऑर्थो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट इस समय में करने से, जैसे आई टोल्ड यू कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. लाइक अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होगी, या उस टाइम पे आपको कुछ सर्जिकल जाना होगा, तो वो सारी चीज़ें हम पहले ही रोक सकते हैं. दैट्स द ओनली थिंग. So, like talking only about social media, like social media is so much highlighted, the super kids, and then, kids influencers. So, a lot of, DIYs, we see that, kids want super white teeth. And then, so, like, would you consider any DIY? नेवर प्लीज. आई नो ये बहुत सारे लेमन एंड सोडाज एंड बाइकार्बोनेट्स और सब कुछ लोग बहुत ये DIYs में करते हैं. दे हैव वेरी हाई कंटेंट ऑफ एसिड्स एंड एवरीथिंग. सो जो आपके दांतों के लिए अच्छे नहीं हैं. सो दैट अब दांत को वाइट करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं. इफ़ यू कम टू अ डेंटिस्ट दे विल एक्सप्लेन यू द होल थिंग. बट देन आई ऑलवेज से वन थिंग कि just embrace yourself. you know you don't have to look perfect. The aim in life shouldn't be मुझे perfect रहना है हर चीज़ में. your that's your uniqueness. अगर आपके दांत एक जगह से थोड़े से tilted है, that's what is setting you apart. That's setting your feature apart. That's making you little unique from others. तो मुझे अगर किसी का फेस भी याद रखना होगा, अच्छा ओके दैट गर्ल विथ लिटिल टर्न crooked teeth, that's how we remember, right? Yes, yes. So that's your uniqueness. Yes, and yes. and people should learn to embrace it. Don't focus on looking perfect. Smile का मतलब है to show your happiness. Yes. It doesn't mean आपको perfect दिखना है. Okay. It's about how confident you are Yes. with those teeth. If you are not, see we have lot of treatments again. अगर especially अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये पार्ट में प्रॉब्लम है, आई वॉन्ट टू गेट इट ट्रीटेड, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. बट वो चीज़ प्रेशराइजिंग नहीं होनी चाहिए कि अच्छा बिकॉज इस एक्ट्रेस का दांत ऐसे है या इस मॉडल का दांत ऐसे, तो मुझे आई वॉन्ट इट अ सर्टन वे.
विच फॉर वो भी उसके लिए भी हम लोग हैं, इफ यू वांट इट आल्सो वी आर देयर, Yes. बट इट शुडंट बी कमिंग फ्रॉम अ प्रेशराइजिंग पॉइंट ऑफ Yes, व्यू yes. कि बिकॉज आई नीड टू लुक अ सर्टन वे, यू नो, तो वो चीज़ें वैसी नहीं होनी चाहिए कि वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी एज अ पेरेंट्स भी, आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा वो चीज़, बच्चों को खुद भी समझनी पड़ेगी कि रियल लाइफ अगेन एंड रियल लाइफ आर वेरी डिफरेंट। तो वो एडिटेड फोटोज एंड एवरीथिंग वो ग्लैमरस लगती है चीज़ें, which is not bad, again that's their work, we wouldn't be saying anything, that's their work and they like looking at like, you know, absolutely best, so वो उनकी चीज़ें हैं, but उससे इन्फ्लुएंस होके हम अपने आप को वो चीज़ करें, that should be actually explained to a kid, वो बचपन से समझानी पड़ती है बच्चों को, because as you said हाँ सोशल मीडिया है, there's all comparison everywhere, अच्छा there was a patient who came, मुझे डिम्पल चाहिए, Okay. you know, like Preeti Zinta. Yes, yes. So I'm like, say तो आपको डिम्पल चाहिए, don't say like Preeti Zinta, say you want a dimple, you know. Okay. So वो चीज़ें आती है, देखिए हम जो देखते हैं एज बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, सबके हाथ में फ़ोन है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, know. बच्चे को फ़ोन दिया जाता है बहुत जल्द, सो ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस होते हैं डेफिनेटली, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट बिकॉज उनको जो देख रहे हैं बड़े होते हुए, दैट्स हाउ व्हाट दे बिलीव इन, राइट। हम भी जो बचपन से देखते आ रहे हैं हम वही चीज़ पे बिलीव करते हैं, सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बट हाँ पेरेंट्स को थोड़ा उस वे से समझाना चाहिए बच्चों को। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये Yes. सारी चीज़ों में, Yes. जैसे एट मयूर स्कूल यू सेड Yes. आपकी इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, Yes. बहुत सारी चीज़ें होती है, सो आई थिंक दिस इज समथिंग टीचर्स पेरेंट्स जो आपके होते हैं, ट्यूशन टीचर्स होते हैं, दे कैन प्ले अ वेरी यू नो Vital role. vital role into actually shaping them when they grow up. तो आई थिंक ये चीज़ें बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, दैट यू नो दिस इज़ नॉट एवरीथिंग, दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड व्हाट यू आर सीइंग, ये सब कुछ नहीं है लाइफ Yes, में, यू नो, yes, yes. एंड दैट कॉन्फिडेंस, चलो आपके दांत थोड़े टेढ़े भी हैं बट यू आर स्माइलिंग कॉन्फिडेंटली, you are radiating that happiness, that you are actually happy inside. Yes. I think that's the best thing, that's the Yes, best thing you yes, can yes, actually teach exactly. them, you know, about themselves. So, like, you know, I have seen people using cloves for, you know, to cure their toothache. Yeah. So pain, like, is it like how much is it helpful or like? सी जैसे अब किसी को रात में इश्यूज हो जाते हैं, देयर पेशेंट्स जो आते हैं मेरे पास कि मैम रात को बहुत दर्द हो रहा था तो हमने ना वो क्लोव डाल दिया तो एक बार के लिए थोड़ा सा ठीक हो गया, ठीक है, ऐसी दैट इज़, और घर का नुस्खा वट हम बहुत टाइम से चलती आ रही है चीज़ें, आई वुडंट से कि एन एब्सोल्यूट नो, बिकॉज अब इमीडिएटली आप रात को 12 बजे कौन डेंटिस्ट ढूंढोगे जाके, Yes. सो बट स्टिल देर आर मेडिकेशंस जो आपको रखनी है, बट हाँ अब किसी को पता ही नहीं है, सडनली वो पेन उठ जाता है, सो दैट इज़ समथिंग वंस आपने एक बार कर लिया, बट नेक्स्ट डे प्लीज़ गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट। ये नहीं कि एक बार ठीक हो गया तो चलो ठीक है, फिर वो एक हफ्ते बाद फिर होगी तो फिर आप वही चीज़ करोगे, वो कंटिन्यूस चीज़ जो होती है वो प्रॉब्लम दे सकती है। यू डिड इट वंस, चलो ठीक है, एंड देन नेक्स्ट डे गो विजिट योर डेंटिस्ट, एंड देन द डेंटिस्ट डॉक्टर इज गोइंग टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है चीज़ें, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगी आपकी। बट अगर कोई हैबिट बना लेता है उस चीज़ को, देन इट्स डेफिनेटली अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। Yes. Okay. So, one of the fun facts, like while researching about dentistry or tooth, I came across is our tooth are our tooth has that strong ability, like it is stronger than a shark's bone. Is it? Yes, So, definitely. would you like to share any fun fact? It's in fact the strongest thing in your body, even stronger than your bone. Okay. Okay, the enamel is the hardest part of Okay, your body, okay. substance in your body. Okay. सो बेसिकली यही एक चीज़ होती है, अगेन एंड अगेन मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी नहीं होती है दांतों में, Yes. वंस इट्स गॉन, It's gone. इट्स गॉन, Okay. आपका कैविटी पकड़ लिया वो ठीक नहीं होना है, क्रैक आ गया टूथ में, दैट्स नॉट गोइंग टू बी ओके ऑन इट्स ओन, यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट टू गेट इट फिक्स्ड। Okay. लाइक आपके और जो ऑर्गन्स होते हैं, आपके बोन्स होते हैं, आप देखते हो आप कहीं गिर जाते हो, फ्रैक्चर हो जाता है, इट हील्स, but this is something which is non-healing, it will Yes. not heal on itself, So, so you need a dentist to fix them, you need things, you know, so this is hard है, but फिर because इसमें living cells नहीं होते हमारे दांत में, there are no living cells in on our tooth, right? So
It is, yes, it is the hardest substance in your thing because of that what I explained कि वो acid formation की वजह से वो cavities लग जाती है आपके. In fact, it's stronger than many metals also. If you be, Oh, it's a hard, one of the hardest substance in your body. oh, okay. So yes, that it is true, but then again, you अगर खराब हो गया, you only a dentist is gonna fix it. It's not Yes, self yes. healing. So, like, you know, what is the durability of the fillers? Which fillers? The fillings. Yes, What? yes, Okay, yes. okay. Durability again, it depends. There are various. एक तो बहुत सारे different different filling materials होते हैं जो restorative materials हम बोलते हैं. Different types of चीज़ें होती है आपकी. Plus देखो कुछ कुछ होते हैं जो 2-3 महीने में बोलते हैं मैम निकल गया. No. कुछ कुछ 20 years तक भी चल रहे हैं. सो कम्प्लीटली एक तो डेंटिस्ट का ये चीज़ कि आप कितने अच्छे एनवायरनमेंट में फिल कर रहे हो. हल्का सा भी सलाइवा नहीं आना चाहिए. बहुत सारा आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है व्हेन यू डू अ फिलिंग. देयर शुडंट बी एनी सलाइवा अराउंड, एनी वाटर कंटेंट अराउंड. फर्स्टली. सेकेंडली वो बच्चा कितना है, बच्चा या बड़ा, जिसकी भी फिलिंग हो रही है वो कैसे रख रहा है. और आपने फिलिंग करा के गए, आपने जाके वहाँ पे एक बार में सुपारी खा ली, कुछ खा लिया, इट Oh, डजंट वर्क दैट वे. okay, okay. सब चीज़ की अपनी एक लिमिटेशंस होती Okay, है, okay, राइट. okay. फिर अगेन देयर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब वही मैं बोल रही हूँ, इट कैन बी लाइक as less as 2 to 3 months. It can be as long as 20-30 years. So I Okay. had a feeling when I was like, in my first year BDS, which was I Okay. was when I was 17. So it's already been like years and years, and matlab kuch bhi, it's all fine. And like, what is the substance of that filling? There are a lot of things. Calcium होता है, hydroxide, जो आपके दांत को mimic करता है. Okay. It cannot be as hard as your enamel, definitely. It can, nothing is as hard as your enamel, जैसा मैंने बताया. बट हाँ, एक टाइप से मिमिक करता है आपकी चीज़ों को. प्लस जो आपके कीड़े लग रहे हैं उसको भी वो ग्रो करने से रोकता है. Okay. इट हैज़ सर्टन थिंग्स. आपके जो फिलिंग्स होती है उसमें सर्टन थिंग्स होती है, कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके उसमें रोक देती है कि आपके और कीड़े अंदर ना जाए और प्रॉब्लम्स ना हो. सो बेसिकली ये दोनों आपके हील उसका भी वर्क करता है टू स्टॉप द माइक्रोबियल इन्वेशन. प्लस आपके जो जगह खाली हो गया उसको भी फिल करता है वो. Okay. I'm laughing before the question is striking in my Alright. mind. Like talking about India as a whole and Indian men as a whole, and then men and gutka spitters, gutka eaters. So, how bad their teeth or tooths are. You must ask me that. That is the question. My God. We Okay. face it every day. So yeah. How bad it is, or It's definitely bad, just not for your tooth, for your overall health. So, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में I can talk like days on days, basically. Every day. no, it is very Common, irritating. and it's very common, Yeah, yes. common and irritating. We can find gutka spitters, like eaters to ho gaye eaters, but then spitters on a Way like and the roads and roads every everything, time yes, on yes. every step. Government Each should actually start taking, they should start charging them like fines and everything, because this is a very, it's a major problem in India, Yes, especially in India. pan was one of the things, and Yes. it is still a thing. It's still a thing. Yeah. But then gutka replacing pan is not a thing. Yes, definitely. I wouldn't. I don't. I have no words to say about this. Actually, to be very honest. So how do you deal with Because- that? Because it might be very filthy Yes, too. Yes, it is. It is. There are people who come walks in every day. Ma'am, cleaning करवानी है. Ma'am, ये करवाना है. And when we have a look, it's like, okay, how many packets in a day? So that's the first question what we ask. And it just that's what I'm saying कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ओरल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है वो चीज़, ओवरऑल हर ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है आपकी बॉडी में. अल्टीमेटली people who smoke, people who do this gutka things and all, आपको माउथ में तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग वेयर यू आर टेकिंग इट, बीट स्मोक, बीट एनीथिंग. एंड उल्टा वो रखते हैं अपने मुंह में. देयर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट कीप इट इन देयर वेस्टिब्यूल एंड एवरीवेयर. And when you actually see that vestibule and we open up and see, and we are like, वो पूरा का पूरा pre-malignant lesion बन चुका होता है, Okay. which is like your pre-cancerous lesions जो हम बोलते हैं. तो Mouth ulcers, mouth अल्सर्स आर cancer. स्टिल ओके, बिकॉज वो चीज़ हमको Curable क्योरेबल है है. वो सारी चीज़ें.
बट व्हेन इट कम्स टू प्री मैलिग्नेंट प्री कैंसरस लीजन्स जब बनने शुरू हो जाते हैं, देन वी टेल द पेशेंट कि देखिए दिस इज़ अ टाइम यू हैव टू स्टॉप इट नाउ, बिकॉज अगर ये और आप कंटिन्यू किए दिस विल go into a cancer stage. So we actually deal with lot of patients coming in, मैम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, मैम कर ही नहीं पा रहे हैं. So फिर वो counseling plus वो nicotine patches वगैरह, we try with all those things. But again वही, but there was a guy who had come, he's just I think 28 29 years old. So he had पूरा का पूरा रजनीगंधा stain, pan stain, and मतलब you couldn't see his tooth. Like not a single tooth could be seen. Okay. It was just covered. Everything was Covered, just red. covered with Red. black and red, Red, and okay. those multiple rainbow colors. My So after I cleaned it, I explained the patient the whole thing, the how I actually just don't sit and just do my work. First is to talk to the patient कि उनका फ्यूचर में क्या है. अगर उनको वापस से गुटखा खाना है, हमने मत करवाइए फिर क्लीन अप. इफ यू एक्चुअली वांट टू कंटिन्यू डूइंग इट, व्हाट इज द पॉइंट? अभी रेड है, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगा, दैट्स ओके, ठीक है ना. नहीं नहीं मैम बहुत खराब लग रहा है ये चीज़. मैंने यू आर रियलाइजिंग इतना खराब लग रही है चीज़ें, यू आर इट्स लुकिंग बैड. लुक्स भी फिर भी चलो आप साइड छोड़ दो, बट आपको कितनी मतलब कितना बैक्टीरियाज, कितनी सब कुछ Yes. आपके मुंह में बिल्डअप हो रही है पूरी की Bacteria पूरी. and then odor and then Yes, a lot of factors. lot of Yes. things, lot of things. So once I cleaned it for that patient, it's been around 6 months now. वो patient ने छुआ नहीं है रजनीगंधा वापस. Okay. कि, "Ma'am, I'm liking this thing. I don't want those stains again on my tooth, you know." So जो छोड़ने वाले होते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो समझ जाते हैं. बट देन देयर आर पीपल जो नहीं छोड़ पा रहे. हम इतने सालों से खा रहे हैं, हम कैसे छोड़े, हमसे तो नहीं हो रहा है. वहाँ पे वी ऑब्वियसली डू आवर काउंसलिंग, वी डू लॉट ऑफ वी एक्सप्लेन कि क्या क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं अभी बाद में. एंड देन अगेन वो सोशली क्या क्या, बिकॉज दिस इज ऑल पीयर प्रेशर. मोस्टली पीयर प्रेशर में कम एज में लोग शुरू कर देते हैं. सेकेंडली इट्स लाइक अरे मैम बहुत स्ट्रेस होता है. आई डोंट नो हाउ डज दिस क्योर योर स्ट्रेस. आई हैव नो आइडिया. हम सबके लाइफ में स्ट्रेस है, हम सब खाना शुरू कर दें. That So- smell only gives us very Yes. bad impression of that Yes, person. yes. सो वो समझाना पेशेंट को. सी आवर वर्क इज़ नॉट कि हम सिर्फ ट्रीटमेंट करें और जाने दें. हमारा वर्क है कि उनको बताना कि क्या सही है, क्या गलत है, इसके फ्यूचर में क्या रिपरकशंस हो सकते हैं. सो एवरीथिंग वी नीड टू टेल द पेशेंट एज अ ले मैन. हाँ उसने देखा है भाई मेरे ये मेरे चाचा मेरे ताऊ जी तो कब से खा रहे हैं, ये सब तो है. बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसके बाद में रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं. Yes. सो वो चीज़ समझाना प्लस टू हेल्प देम इन कमिंग आउट ऑफ थिंग्स, जस्ट नॉट थ्रू काउंसलिंग. बहुत सारी चीज़ें होती है. यू कैन नॉट फोर्स द पीपल इफ दे डोंट वांट टू डू इट. Yes, सी यू कैन नॉट. exactly. आप आज आपको मैं बोलती हूँ आप ये मत करो, आप व्हाई विल यू लिसन टू मी. Yes. आई हैव टू गिव यू स्पेसिफिक रीजंस कि Reasons. हाँ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ इनकी इसके डिसएडवांटेजेस है, ये चीज़ इसके रिपरकशंस है. ओनली देन यू सिट बैक एंड थिंक कि चलो ठीक है, Yes. आई कैन गिव इट अ ट्राई. And then we have this nicotine patches and all जो आजकल, and it works. We actually give our patients nicotine patches जो एकदम भी नहीं छोड़ पा रहे हैं. It really works. So, I wanted to talk about mouth stones. Like, You're this talking is- about calculus, yeah. This is very common Yes. in like for kids as well. Yes. I believe they also have this stone like white here and there inside the gums, like everywhere, like anywhere. So how and why and how to remove it? Can you highlight? Okay. So basically, as I पिछले क्वेश्चन में like कुछ क्वेश्चंस पहले I spoke about plaque, those sticky materials Yes, जो आप yes. आप देखते हो कि जब आप रात को ब्रश नहीं करते हो, आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो आपके ना when you just run your tongue all around, you can just feel there are some sticky substance Yes, जो yes. बने हैं आपके माउथ में. Yes, yes. दोज आर प्लाग. हम जिसको प्लाग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में. बेसिकली वो क्या हो गया है, बैक्टीरियाज आके वहाँ पे एक फिल्म बना है, बायो फिल्म जो हम बोलते हैं दांत में. आप देखते हो जब कोई पानी पानी जैसी चीज़ होती है उसके ऊपर वो जो काई जम जाती है, द ग्रीनिश थिंग. सो इट्स द सेम थिंग, इट्स अ बायो फिल्म Oh, जो okay. नेचर में भी हमको दिखता है बायो फिल्म. Okay, वो okay. पूरा एक आपका बैक्टीरियल इन्फेक्टेड चीज़ होती है. अब फिर आपने क्या किया,
आप सीधा गए, आपने वापस ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया उसके पूरे बायोफिल्म को, धीरे धीरे वो क्या करता है, वो हार्डन हो जाती है वो चीज़ें. देयर इज़ अ बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन दैट हैपेंस इन दोज रीजन्स. तो वो हार्डन हो के वो इतनी हार्ड हो जाती है कि वो ब्रश से फिर निकल नहीं पाती है. इसलिए मेंटेनिंग योर ओरल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट गिव्स राइज टू जिंजवाइटिस, जो आपके गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है गम से, पस डिस्चार्ज होने लगते हैं गम से. तो ये सारी चीज़ें वी जब वो सॉलिडिफाई हो जाती है, देन वी कॉल इट एज कैलकुलस. Okay, जो आपने calculus. स्टोन यूज़ किया है, Stone, दैट इज़ योर कैलकुलस जो हम बोलते हैं. that I believe इंटरनेट में मतलब कुछ सर्च करो ना तो मतलब दिख Yes, जाती है, बन जाती है, yes, लाइक yes, दे कॉल इट एज माउथ स्टोन और yes, yes. समथिंग लाइक दैट. Right, right. So in our language, in our term, we call it calculus, जो हम बोलते हैं. सो अब फिर जो बन गई है वो कोलोनाइजेशन, अब वो हम जो प्रोफेशनल क्लीनिंग करते हैं वो उसी से जाएगी. उससे धीरे धीरे क्या होता है, अब जैसे मैंने बताया, ब्लीडिंग गम्स होने लगते हैं, रेड पफी गम्स होने लगते हैं, पस डिस्चार्जेस होने लगते हैं, आपके जो मसूड़े हैं वो आपके दांत से नीचे जाने लगते हैं. इट्स बिकॉज अब वहाँ पे आपका अब वो कहाँ जाएगा, वो कॉलोनी तो फॉर्मेशन उसका इंक्रीज हुए जा रहा है. इट विल नॉट, इट्स नॉट गोना कम डाउन नाउ. एक कॉलोनी हो गई है, उसने बहुत अपना पूरा जगह बना लिया है, तो वो और मल्टीप्लाई ही होते रहेंगे वो चीज़ें. उसको फिर डिस्टर्ब करने के लिए हम जो प्रोफेशनल क्लीनिंग करते हैं अपने क्लिनिक्स में, दैट इज़ रिक्वायर्ड. एंड देन वी आस्क द पेशेंट कि भाई आप अच्छे से कैसे आपको ब्रश करना है, कैसे आपको मेंटेन रखनी है उस चीज़ों को. फिर हम पेशेंट को उसके बारे में एडुकेट करते हैं और भी आगे. Okay. So, you know, science and creativity goes hand in hand with you. Definitely. So, and also we at Mayur believe that, textbooks and, education, like old way of education is very monotonous. So we welcome the modern way of education. So we believe that science and creativity should go hand in hand. So what could be the career options for our children, or maybe the children of this generation, so that they can opt, like as you have opted, like you are also enhancing the beauty of a person and also treating them. So what would be your suggestion? फर्स्टली आई वुड डेफिनेटली आस्क किड्स कि अपनी इंटरेस्ट ढूंढो सबसे पहले. इट शुडंट बी प्रेशराइज्ड एट ऑल, बिकॉज आप जो चीज़ को लव करते हो, आप कोई चीज़, यू लव समथिंग, तो आप उसको आगे तक खींच सकते हो चीज़ों को. बट देन आपको जब मन ही नहीं है वहाँ पे, पेरेंट्स ने बोला नहीं आई वॉन्ट माई किड टू बिकम अ डॉक्टर, बट बच्चे को नहीं बनना है, उसको फैशन डिज़ाइनर बनना Yeah, है. exactly. उसकी मे बी ही इज़ गुड एट इट, ही हैज़ इंटरेस्ट इन दैट. इवन इफ इज़ नॉट गुड एट इट, बट आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में बच्चे का, तो वो सीख लेगा, और वो मन से सीखेगा वो चीज़ को, बिकॉज उसको करनी है वो चीज़ें. ज़बरदस्ती का पेरेंट्स के बहुत सारी चीज़ें होती है कि नो, बिकॉज एक जो मैं बहुत कॉमनली सुनती हूँ, मैम मुझे बनना था ये चीज़ बट मैं नहीं कर पाई, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चा बन जाए. दिस इज़ नॉट योर चॉइसेस, कैन बी डिफरेंट, योर चॉइस फॉर योर किड्स कैन बी डिफरेंट. Yes. एंड जैसे बच्चे वो चीज़ को समझ रहे हैं, पेरेंट्स को भी उस चीज़ को समझना चाहिए. कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है कि अब डॉक्टर बनोगे तभी आपका एक होल्ड रहेगा, ऐसा नहीं है. I think we have brilliant fashion designers in our, in India and abroad, and we have brilliant photographers, artists. कितनी Yes. सारी professions Public है. speakers, Public speakers, motivational speakers, जो Speakers, आजकल yes. इतने ज़्यादा मतलब they are dancers, dancers. There's writers, so many professions, yes. so many professions. तो अगर आपके बच्चे को वो प्रोफेशन में जाना है, I think we should all encourage them. Yes, and that is the similar kind of thing we do at Mayur, because we have I believe we have a co-curricular activity as a hub. We have created a hub for our children, so that किसी चीज़ में भी interest हो, so that they can see, they can Right, learn, and right. if they want to pursue it further, Correct, they can, correct. because कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कभी मतलब एक्सप्लोर ही Explore नहीं किया. नहीं किया, तो how How will they know? yes, exactly. So had I known archery when I was a kid, maybe I Maybe, yes, yes. And maybe you would have become the best one Yes, in the yes, in the exactly. city, in town, Yes.
in or India, like maybe you never maybe know, yes, yes, like internationally, like Olympics में जा रहे yeah, होते हैं. yes, So yes. so that is also one of the things we, consider it in our mind, like. बिकॉज देखो सब बच्चे का इंटरेस्ट एक जैसी नहीं होती है. देर आर फ्यू जिसको स्टडीज में इंटरेस्ट है, किसी को नहीं भी है. Yes. एंड आप उसको मार मार के बिठा के पढ़ा रहे हो. सी आई एम नॉट सेइंग बेसिक डिग्रीज नहीं देनी है, बेसिक Yes. डिग्रीज लेनी है. Yes, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप जब पढ़ रहे हो, आप खाली एडुकेशन नहीं पढ़ रहे हो, आप 10 लोगों के साथ बैठ रहे हो. आप मतलब किस सबके बारे में कुछ ना कुछ सीख रहे हो, हाउ द वर्ल्ड इज, हाउ पीपल आर. तो ये एडुकेशन डजंट मीन खाली बुकिश नॉलेज जो होती है आपकी. एडुकेशन इज नोइंग पीपल, ट्रैवलिंग टू प्लेसेस, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. यू मेक फ्रेंड्स, दे बिट्रे यू. उनको पता है अब नेक्स्ट क्या नहीं करना है मुझे. यू इट एक्चुअली द होल जो प्रोसेस है टीचर्स यू कि आपको आगे जाके लाइफ में क्या गलतियाँ नहीं करनी है. यू नो, so education in every way is important. Basic degrees are important. I would not say कि आपने 8-9 में पढ़ाई छोड़ दो और get into this. नहीं. And with the growing advancements, not just technological, social, and a lot of economic and a lot of advancements, there are n number of career options which a child can opt. Like, when I was a kid, I had never thought that PR would be one of the career options I would be opting. So now, like, Now you know it's a very good option. Yes, And yes. and you're doing very good, I guess, in that. So yes, career options वही होते हैं जो आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट होते हो आपकी. So again, coming back to your question, I think pressurize नहीं करना चाहिए बच्चों को. जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, complete your thing. बेसिक डिग्रीज ले लो, आप उसमें जाओ उस चीज़ में. You never know, you can become the next, the best thing, best, person जो उस फील्ड में है. You never know. पेरेंट्स को भी अभी समझ में नहीं आ रही कि उनको भी, चलो पेरेंट्स की जगह पे भी मैं बोलती हूँ, दे आर नॉट रॉन्ग. बिकॉज उनको दिखती है चलो इंजीनियर हो जाएगा, चलो लाइफ सेट है, चलो डॉक्टर हो जाएगा, लाइफ सेट है. हर पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे के लिए कि बेस्ट से बेस्ट हो वो चीज़. पर ज़रूरी नहीं उस बच्चे को भी उस चीज़ में बेस्ट दिखे. उसके लिए कुछ और बेस्ट हो सकता है. एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली. सो आई थिंक वो पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग अपनी जगह पे. बट देन हाँ, बच्चे को समझना, हर किसी के कैपेबिलिटीज़ अलग होती है. अब आप देखोगे एक मछली को कि आप ना पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, वो नहीं कर पाएगा बिकॉज दैट्स नॉट हिज फोटे. बट आप पानी में छोड़ दो, वो कितने अच्छे से फ्लो करेगा बिकॉज वहाँ दैट ही बिलोंग्स टू दैट प्लेस, राइट. अब जहाँ पे वो बच्चा बिलोंग ही नहीं करता है, आप ज़बरदस्ती उस बच्चे को उठा के वहाँ पे डाल देते हो. सो बच्चा इज़ लॉस्ट कि मैं क्या करूँ. एंड बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं आजकल, कितने सारे न्यूज़ आते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट मिसहैप्स जो होते हैं बहुत सारी जगह पे. दैट्स बिकॉज वो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पे. आपने ज़बरदस्ती फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर की वजह से वो चला तो गया है वहाँ पे. सो आई थिंक वो बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक आजकल के पेरेंट्स समझ भी रहे हैं. Yes. जो हमारे जनरेशन के हैं, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दीज Yes, थिंग्स. and the initiative which Mayur has taken, like educating, basically for the parents only. Right. This podcast is Very, is very, for the very good, parents very only, and then educating them. Like, we bursted some myths today, so they do not have to visit a Right, dentist to talk a lot about braces Correct. and fillings and other cheeses and ज़्यादा हो गया. प्लीज कट and other things. So it is very important कि अगर ऐसा educational hub हो जहाँ पे children can be molded in a better way, shaped in a better way. That will be a better Definitely. yes. I think Mayur is doing a wonderful job in this. I think as you are talking about the whole thing, I think ये अच्छी बात है कि आप at least एक initiative लिए हो बच्चों के लिए. I hope this continues and दूसरे सब सारे schools धीरे धीरे adapt करें इस चीज़ों को. Yes. So, one thing I would like to, ask you, for the kids who are watching this, any advice you would like to our kids, whoever is watching? I would just say be yourself. That's all.
Because I have followed this since my childhood. My parents were very supportive, कि आपको जो सही लगता है आप करो. Even when I did I gave my engineering exams and my medical exams. My dad just told me one thing, बेटा आपको जो सही लगे आप करो. ये दोनों भी नहीं लेना कोई बात नहीं, आपको जो सही लगे आप करो. I was very interested in dancing. Like I'm a dancer basically. So मैं बचपन से सिर्फ डांस करते आई हूँ. Okay. So even today when I get time, I do that. That's a thing, like that's my passion, that's my relaxation. So but हाँ मुझे पता था, I was wise enough to understand कि एक फील्ड में तो मुझे जाना है. एंड वेन दिस अपॉर्चुनिटी केम कि हाँ इंजीनियरिंग या डॉक्टर में आप चूज़ कर सकते हो चीज़ें, सो आई वेंट फॉर दिस थिंग. So I would just say explore yourself more and just be yourself. And a healthy and good smile is contagious, and that's the best thing I think everyone can wear. That's the best thing anyone can wear. That is a good, confident, healthy smile. So just embrace yourself, and you don't have to change for anybody. बट हाँ थोड़ा सा अपना पेरेंट्स की भी सुनो. आई वुडंट से मत सुनो, वो भी अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं चीज़ें. कितनी बार हमें लगता है इस टाइम पे नहीं नहीं हम बड़े हो गए, हमको पता. इवन टुडे आई गो टू माई डैड फॉर टेकिंग सर्टन एडवाइजेस, राइट. सो बिकॉज वो एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में, दैट इज़ द रीज़न दे टेल यू, एंड दे ओनली वॉन्ट गुड फॉर यू. सो दैट्स द, आई थिंक हर पेरेंट्स का एक यही चीज़ है, दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर देयर किड्स. बट पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ है, अपने बच्चों को भी प्लीज़ समझो आप. दैट्स द ओनली थिंग आई वुड से. So, thank you so much for being here with us, sharing your expertise and experiences. And it is gonna really, hooked to a parent, whoever is watching. And I am very, very thankful. Thank you for having me. It was a lovely session, and बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं obviously बहुत डिटेल में नहीं बता पाई because of the time constraints. But then I would definitely want कि लोग आए, जाने और चीज़ें समझे. My clinic is Dentix by Dr. Lavina, which is right opposite to Cosmos Mall. So for anything, any queries या कुछ भी आपको अगर बैठ के बात करनी हो, समझनी हो, I'm always there. So, thank you so much. Thank you for watching Kalamveer's this episode.